Good morning, students. In the chapters Natural Vegetation and Wildlife, we have seen that distribution of wildlife, how different type of animals live in different climatic zones. Here you can see in Africa, elephants and hippopotamus, rhinos, and different animals are found. In Northern America, reindeer, Arctic foxes, polar bear, mooses, and in South America, rhea, condor, anteater, armadillos, llamas, anaconda, and in Asia, monkey, tiger, sloths, elephant, lions. Same way in Europe, a whole wolves, wild boars, sheep, rabbit, foxes, and Australia, emu, kangaroo, wallaby, and jackals. अंटार्कटिका में krills, whales, penguins, etc. These are found. So this way we can see here how different animals are found in different climatic zones. Okay, students. Here we have also seen that what is the importance of the wildlife, and ultimately they are very important for us because they make a balance and ecosystem of the earth. So it is very important to uh, make them survive. How, what is the impact of human being on wildlife? Here we start our studies. Students, the impact of human being on wildlife is almost very negative. People are also involved in the exploitation of the wildlife resources. They are blindly involved in poaching. हियर एनिमल, यहाँ पर हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, ये उनको शिकार में करने में, उनको इलीगल तरीके से ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर the animals like lion, tiger, elephant, deer, black buck, crocodile, peacock, etc. are poached for collection and illegal trade of hides, skin, nails, teeth, horns and feathers. अब इनकी इलीगल ट्रेड होती है, इनके अलग अलग ऑर्गन्स को बेचा जाता है एंड ये इंटरनेशनल मार्केट में इनकी अच्छी प्राइस मिलती है, जो कि अलग अलग जगहों पर कंट्रीज़ में इसको बेच करके और लोग इलीगल तरीके से इसकी ट्रेडिंग करते हैं. सो दीज एनिमल्स शुड बी प्रोटेक्टेड. इनका प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है. आइए the next move to the next topic, that is conservation of wildlife. Here it is very inevitable to protect them all wildlife because they are most important for us, and without animal wildlife no ecosystem exists. Wildlife or animal are precious gift of nature for human being, so it is essential to conserve them for the coming generation. हमें आगे अगर सस्टेनेबल सर्वाइव करना है, आगे की जनरेशन के लिए भी वैसे ही लाइफ मेंटेन रखनी है जैसे कि हम अपने लिए मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है. स्टूडेंट्स, हियर सेवरल बायोस्फीयर रिजर्व्स, biosphere reserve, it is most important here. Several biosphere reserves are established to preserve the genetic diversity of the wildlife. They are the series of protected areas linked through a global network intended to demonstrate the relationship between conservation and development. सो स्टूडेंट्स, एनिमल्स के वाइल्ड लाइफ को जो हम कंजर्वेशन करते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं. इंडिया में भी बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व
हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ। ओके, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सभी बनाई जाती हैं। सो हियर यू कैन सी थ्री टर्म्स, फर्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व, सेकेंड नेशनल पार्क एंड थर्ड इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। Now, national park is a natural areas designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystem for the present and the future generation. While in wildlife sanctuaries, is a restricted area, reserved area meant for the preservation and development of the endangered species. नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। नेशनल पार्क जो होते हैं वहाँ पर हम उनकी इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, वहाँ पर हम नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है उन दोनों को वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है और इसके सस्टेनेबल सर्वाइवल को हम फोकस करते हैं, यानी कि आगे की जनरेशन के लिए भी वो वैसे ही मेंटेन रहें। ओके, लेकिन यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में हम ये रिजर्व्ड एरियाज़ होते हैं और यहाँ पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती। रिजर्व्ड ये एरिया होते हैं, यहाँ पे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं जो कि लगभग ख़त्म होने की कगार पर हैं, उनको यहाँ पे काफ़ी प्रोटेक्शन किया जाता है। क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स शुड बी कंजर्व्ड। यहाँ पे लेक्स, वेटलैंड ऐसे एरियाज़ जो कि नेचुरल वेजिटेशन में भी आते हैं, ये इन सबको हम यहाँ पे वो कंजर्व करते हैं। एनिमल हंटिंग शुड बी प्रोहिबिटेड टू मीट दिस पर्पज। सेवरल लॉज हैव पास्ड अगेंस्ट द हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पर इन एरियाज़ में एनिमल हंटिंग को प्रोहिबिट किया गया है और बहुत सारे ऐसे लॉज भी बने हैं जहाँ पर इसको इलीगल बनाया गया है। इन आवर कंट्री किलिंग पीकॉक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लायन, डियर एंड टाइगर इज़ इलीगल। यहाँ पर पर्टिकुलर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनके किलिंग पर या उनकी पोचिंग पर वो बैन लगा हुआ है और इलीगल है ये। ऑल रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल at regional and community level, some awareness program should be encouraged. It is very important because without awareness no program will be successful. अगर यहाँ पर अवेयरनेस नहीं होगी तो इसीलिए हर लोकल लेवल पर वहाँ के जितने भी नेशनल पार्क हैं उनके आसपास के लोकल एरियाज़ में लोगों के अंदर इस अवेयरनेस को फैलाया जाता है कि वो खुद भी इससे यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन में कोऑपरेट करें। यूथ should also be encouraged to visit nature camp, natural park and wildlife sanctuaries so that they appreciate the habitat of varied species. यूथ जो कि एक फ्यूचर कहा जाता है नेशन का, उसको भी इसके लिए इनकरेज करना चाहिए ताकि वो इसके लिए अप्रिशिएट हो, आगे बढ़ सके उनकी प्रोटेक्शन के लिए। Animal and birds trading should be prohibited. To meet this purpose, an international convention CITES, here CITES एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। CITES का फुल फॉर्म है द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species. CITES, endangered species of wildlife, fauna and flora. Fauna means यहाँ wildlife and flora means यहाँ के vegetation, natural vegetation. It is an international agreement between various governments. Ultimately, it is our moral duty to conserve plant and animals. Students, ये सभी सिटीजन की एक मॉरल ड्यूटी होती है कि हम इस वाइल्ड लाइफ को भी पूरी तरह से कंजर्व रखने में अपना सहयोग करें। ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आई एक इम्पॉर्टेंट टर्म है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये।
and that is working on issue regarding the conservation, research and restoration of environment. ये उनके कंजर्वेशन के बचाने के बारे में और उनके सर्वाइवल के बारे में रिसर्च करता है। इसके फाउंडर है जूलियन हक्सले और मैक्स निकलसन, पीटर स्कॉट एंड गाई माउंट। और ये इस ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में ये बेस्ड है स्टूडेंट्स। और ये इन्वायरमेंट के इकोसिस्टम पे पूरी तरह से फोकस करते हैं। नाउ दिस वे वी एट लास्ट वी फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट words, important terms of the chapter. Here, first term that is natural vegetation. Students, what is natural vegetation? The group of plants which have developed in an area without, important, without human interfere are called natural vegetation. Okay. Second is biosphere. It is a narrow zone of the earth which life exists. यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है, नीचे लिथोस्फीयर और बीच में एक नैरो जोन होता है जहाँ पर बायोस्फीयर यानी कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करते हैं। ज़ेरोफाइट्स पर फोकस करते हैं। व्हाट इज़ ज़ेरोफाइट? ज़ेरोफाइट ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट आर नोन एज ज़ेरोफाइट्स, जो सूखा से कंट्रोल करते हैं। इसको श्रब्स भी कहा जाता है। झाड़ियाँ जो बहुत ही हॉट एरियाज़ में होते हैं उनको हम वो ज़ेरोफाइट्स प्लांट कहते हैं। कंजर्वेशन इट रिफर्स टू द रेशनल एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द एनी रिसोर्स। कंजर्वेशन का मतलब होता है हम उसका रेशनल, बहुत ही वाइसली उसका यूज़ किया जाए, हम अपने यूज़ के लिए उसको यूटिलाइज़ करें और ब्लाइंडली उसको ना एक्सप्लॉइट किया जाए और आगे की जनरेशन के लिए भी उसको मेंटेन रखें, तो इसे हम कंजर्वेशन कहते हैं। वाइल्ड लाइफ इट रिफर्स टू एनिमल, बर्ड्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड नॉट डोमेस्टिकेटेड। ये नेचुरल तरीके से जो अपने सर्वाइव करते हैं उन्हीं को वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स इट रिफर्स टू ए सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क। ये ग्लोबली इंटरकनेक्टेड होते हैं और इसमें ये यूनाइटेड नेशंस भी इसमें फंड प्रोवाइड करता है। Intended to demonstrate the relationship between conservation and development. यहाँ पर कंजर्वेशन भी किया जाता है प्लस उनका आगे फर्दर डेवलपमेंट भी किया जाता है। So students, this way we have discussed all the important points here, and now this chapter has been completed, and if you have any doubt you can ask me in the group. Thank you.